السلام علیکم، آج 5 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ مصباح لغاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو اہم خبر دیں۔ افسوسناک خبر ہے کہ سینئر بلوچ قوم پرست رہنما سردار عطا اللہ مینگل انتقال کر گئے ہیں۔ سردار عطا اللہ مینگل کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ بی این پی کے اثیر رہنما عارضہ قلب میں مبتلا تھے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے کامران شیخ سے۔ جی کامران شیخ، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بی این پی کے سینئر رہنما قوم پرست رہنما سردار عطا اللہ خان مینگل کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ انتقال کر چکے ہیں۔ اسپتال ذرائع نے ان کے انتقال کی تصدیق کی ہے۔ سردار عطا اللہ مینگل تقریباً 1 ہفتے سے کراچی کے نجی اسپتال ٹپا ہارٹ میں زیر علاج تھے، جہاں پر وہ عارضہ قلب میں مبتلا تھے۔ ان کی طبیعت کافی خراب تھی اور اسپتال ذرائع بتا رہے ہیں کہ اہل خانہ کو ان کی طبیعت کے حوالے سے کاؤنسلنگ کر دی گئی تھی، کیونکہ عارضہ قلب میں مبتلا ہونے کے باعث جو ہے وہ شدید جو ہے وہ کمزوری بھی فیل کر رہے تھے۔ ابھی افسوسناک اطلاع آئی ہے، اسپتال ذرائع نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جی کامران شیخ، یہ بھی بتائے گا کہ ان کے اہل خانہ سے کوئی رابطہ ہو پایا ہے اور اس وقت ان کے ساتھ ان کے گھر والوں میں سے کوئی موجود ہے جسد خاکی کے ساتھ؟ دیکھیں، جو بی این پی کے جو رہنما ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اہل خانہ کے جو اہل خانہ کے ذرائع ہیں اور خاص طور پر اسپتال ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ اسپتال انتظامیہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اہل خانہ کو اس حوالے سے بریف کیا گیا تھا، کیونکہ 1 ہفتے سے جب ان کی طبیعت خراب تھی، وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھے، تو وہ کافی شدید بیمار تھے، جس کی تمام تر تفصیلات اور کاؤنسلنگ اہل خانہ کو کر دی گئی تھی۔ وینٹیلیٹر پہ بھی تھے اور اب جو ہے وہ کامران شیخ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ مجیب احمد بیورو چیف کوئٹہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجیب، انتہائی افسوسناک خبر ہے، سردار عطا اللہ مینگل اب ہم میں نہیں رہے ہیں۔ یہ بزرگ سیاسی رہنما کی بلوچستان میں بہت قدر و منزلت تھی۔ 92 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور جب 1 یونٹ ٹوٹا تھا اور بلوچستان صوبہ بنا تھا تو وہ بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ تھے۔ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز نیشنل عوامی پارٹی نیب سے کیا تھا۔ وہ ولی خان، خیر بخش مری کے شانہ بشانہ، غوث بخش گزنجو کے شانہ بشانہ بلوچستان کے حقوق کی سیاست کرتے رہے۔ بعد میں وہ پھر اپنے علاج وغیرہ کے لیے بیرون ملک بھی جاتے ہیں، لیکن 96 میں انہوں نے اپنی جماعت کی بنیاد رکھی، بلوچستان نیشنل پارٹی، جو بعد میں پھر تقسیم بھی ہوئی بی این پی مینگل اور بی این پی عوامی کے نام سے۔ اس جماعت نے سردار اختر مینگل کو وزیر اعلیٰ بھی بنوایا اور پھر وہ سیاست میں عملی کردار بھی کچھ عرصہ ادا کرتے رہے، لیکن آج کل اور کچھ عرصے سے وہ رہبر کے طور پہ پارٹی کے سربراہ تھے۔ عملی سیاست میں وہ حصہ نہیں لے رہے تھے۔ طویل عرصے سے علیل بھی تھے، عارضہ قلب میں مبتلا تھے۔ 1 ہفتہ قبل انہیں منتقل کیا گیا تھا ہاسپٹل، جب سے ان کی طبیعت کافی ناساز تھی۔ 3 روز قبل بھی افواہیں پھیلی تھی سوشل میڈیا پہ ان کے انتقال کی، لیکن اسے رد کر دیا تھا سردار اختر مینگل نے۔ آج اسپتال ذرائع کی جانب سے کنفرم کیا گیا کہ وینٹیلیٹر پہ مسلسل 3 روز رہنے کے بعد ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا اور ان کی فیملی کو بھی اس سے آگاہ کر دیا۔ کچھ دیر میں سردار اختر مینگل باضابطہ اس کا اعلان بھی کر دیں گے۔ مجھے یہ بھی بتائے گا کہ ان کی تدفین کے حوالے سے کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی، میری ان کی فیملی ذرائع سے بات ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے ان کی تدفین ان کے آبائی علاقے خلزار کا علاقہ ہے وڈ، وہاں پہ ہوگی، اسی گاؤں میں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے وہیں تدفین ہوگی، اور وہ کل کسی وقت ہوگی۔ ٹائم کا تعین فیملی کے اور پارٹی کے لوگ کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹائم کا تعین ابھی تک نہیں کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ سینئر بلوچ قوم پرست رہنما سردار عطا اللہ مینگل انتقال کر گئے ہیں۔ سردار عطا اللہ مینگل کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ بی این پی کے اثیر رہنما عارضہ قلب میں مبتلا تھے اور اب ہم میں نہیں رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے مجیب احمد اور کامران شیخ، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ حکومت کے 3 سال مکمل ہو گئے، لیکن وزراء کے وعدے صرف اعلانات تک ہی محدود رہے۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے کا منصوبہ شروع نہ ہو سکا، جس کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں سکھر سے آج کے نمائندے جمیل مغل۔ جی جمیل، بتائیے گا۔ جی، پورا ملک اس وقت موٹر وے کے ساتھ کنسرٹ ہو گیا ہے۔ اب سکھر اور حیدرآباد موٹر وے جو ہے
3 साल हुकूमत हो गए हैं, सक्खर हैदराबाद मोटरवे का काम अब तक शुरू न किया जा सका। रोज हुकूमत के वज़रा आकर टीवी पे कहते हैं कि अगले चंद महीने में जो है सक्खर हैदराबाद मोटरवे का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन 3 साल इस हुकूमत को हो गए हैं, सक्खर हैदराबाद मोटरवे का काम नहीं हुआ। जो लोग पेशावर से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं, सवात से आते हैं, एबटाबाद से आते हैं मोटरवे पर और बड़े आरामदेह सफर करके आते हैं, जब वो रोड़ी टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं उसके बाद जब वो हैदराबाद के लिए ट्रैवल करते हैं तो खस्ता हाल रोड, नेशनल हाईवे और का जो ज्यादा ट्रैफिक, क्योंकि मोटरवे पे 3 रो होती है और नेशनल हाईवे पे 2 रोया ट्रैफिक होती है, तो यहाँ ट्रैफिक भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो लोग थकन उतारना चाहते हैं लेकिन जितनी भी उनको आरामदेह सफर होता है, इस्लामाबाद से आए या पेशावर से आए या एबटाबाद से आए, कहीं से भी आ रहे हों तो बड़े पुरसुकून तरीके से आते हैं। जब यहाँ से रोड़ी उतरते हैं तो उसके बाद जो सफर होता है उनका, तो जो उनके जो जितना आराम पसंद जो सफर होता है मोटरवे का, वो फिर सक्खर और हैदराबाद के दरमियान जो रोड है उसमें जो है उनकी थकन जो है वो डबल हो जाती है और टाइम का जो है वो भी ध्यान होता है। अब अगर हम सक्खर से मुल्तान के लिए जाएं तकरीबन 400 किलोमीटर है, तो 400 किलोमीटर तकरीबन जो है वो 3.5 घंटे में सफर हो जाता है। अब सक्खर से अगर हैदराबाद जाएं तो ये सफर जो है 5 घंटे में जो है जीटी रोड पर जाना पड़ता है। अगर ये मोटरवे बन जाता है तो सक्खर और हैदराबाद का तकरीबन 300 किलोमीटर का फासला है वो 2 से ढाई घंटे में जो है वो तय हो सकता है। हुकूमत वजीर जो है असद उमर साहब ने कई मरतबा टीवी पे आकर कहा है, सक्खर में हालिया कुछ दिनों पहले जो सक्खर में भी आए थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था, जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने यही कहा था कि प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है ये मोटरवे बनाया जा रहा है, तमाम जो है डील हो गई है, कागजात बन गए हैं, हर काम हो गया है, अब चंद ही दिनों में जो है वो काम शुरू हो जाएगा। आइए चलते हैं कुछ लोगों के पास, उनसे बात करते हैं जो लोग मुसाफत तय करके लाहौर से, इस्लामाबाद से और पेशावर से और दीगर इलाकों से रोड़ी पहुंचते हैं, उसके बाद जो उनका सफर होता है उनके बारे में पूछते हैं उनसे कि उनके क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं घोटकी से आ रहा हूँ। घोटकी से जैसे हम मोटरवे पे चढ़े तो हमें ऐसे महसूस हो रहा था कि हम किसी रोड पे हैं। पहले तो उधर से आते हुए हमें बहुत ही रास्ते में जो है ना मसाइल होते थे, तो अब आगे हमें हैदराबाद जाना है तो अभी जो सारा रोड खराब है आगे और टैक्सेस भी ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर वो फैसिलिटी नहीं है रोड पे जो पहले होनी चाहिए थी। तो हम भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि जल्दी ये रोड बन जाए तो बेहतर है। आवाम को भी ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा निकलें बाहर और कुछ गवर्नमेंट को कहें कि भाई ये क्या है। तो क्या आप मुतालबा करेंगे, 3 साल हो गए मोटरवे नहीं बन रहा? हम ये मुतालबा करेंगे कि क्या ये सक्खर से हैदराबाद तक जो है ना जल्द से जल्द ये मोटरवे बने, सफर आसान हो। ये अभी पंजाब वाला सफर बहुत आसान हो गया है। ये अभी जो है ना इधर से कम से कम हैदराबाद कराची तक 8-9 घंटे लगेंगे, खड्डे पड़े हैं, रोड बिल्कुल खराब है। हम ये मुतालबा करते हैं जितना जल्दी हो सके ये मोटरवे बने। ये आप कहाँ से आए हैं? लाहौर से। लाहौर। अच्छा, अब आपने कहाँ जाना है, कैसा सफर रहा? अभी कराची जा रहा है। सफर सही था, बहुत अच्छा। जो है आगे क्या सफर होगा? अभी बहुत तकलीफ है आगे। इधर क्या क्या गाड़ी को नुकसान होता है, किस तरह चलते हैं? टायर पे पंचर होता है, कभी किसी चीज खराब होता है, कभी किसी चीज खराब होता है। हम तो लाहौर से आए मोटरवे पे, ये रोड को बहुत क्लियर है, पुरसुकून है। आगे जो हम नीचे उतरते हैं जीटी रोड पे उसमें बहुत रश है, तकलीफ है, टायर भी खराब होता है, खड्डे भी है। हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि मोटरवे बनाओ। 3 साल हो गए, सिंध के साथ नाइंसाफी नहीं, दुनिया पूरा पाकिस्तान मोटरवे नो, ये हुकूमतों का काम है, हमारा काम हो नहीं है कि हम ये मुतालबा करते हैं कि बन जाए। खुदा यहाँ से लेके ये सक्खर तक कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आगे जाएंगे तो हमारे 7-8 घंटे लगेंगे कराची तक। ये मुकम्मल होता तो हमारे 6 घंटे 4 घंटे लगते हैं। तो हम ड्राइवरों को जो है ना आगे मोटरवे नहीं बना रहे, हमारे को बहुत मुश्किल है। तो हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि आगे भी जैसे ये मोटरवे बना हुआ है तो आगे भी मोटरवे बनाए। और मोटरवे पे एक बात और है, जो आराम गाह है ना उस पे जो होटल बनाए हुए और शॉप बनाए हुए वो लोग जो है ना बहुत महंगा चीजें बेच रहे हैं, एक का डबल बेच रहे हैं। तो हम ये भी दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से कि इस पे भी जो है ना इंक्वायरी करे कि हमसे जो है ना ये ज्यादती ना करें। आपने लोगों की बात सुनी, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं बाहर से, उनका सफर जो है, कुछ लोग पेशावर से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, मुल्तान से आ रहे हैं,
तो बड़े खैरियत से, बड़े अच्छा सफ़र, खुशगवार मूड में आते हैं। जब वो यहाँ से लोहड़ी उतरते हैं और उसके बाद जो कराची, हैदराबाद या किसी और शहर में जाते हैं तो वो जीटी रोड पर उनको जाना पड़ता है। तो जीटी रोड जो है वो इंतहाई ख़राब है, बड़े बड़े ट्राले हैं, बड़ी ट्रैफिक है, तो उनको जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोयटा में सब्जी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। सब्जियों की कीमतों में अचानक इजाफे ने सारिफीन की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कोयटा से सोहेल अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। के मकामी मार्केटों में सब्जी की भरमार है, लेकिन कीमत शहरियों की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। शहरी महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार देते हैं। 3 साल पहले ये चीजें जो थी ना, इससे आधे से भी कम रेट पर मिल रही थी और आज जो है ना वो इसके 2% जो है ना उसके ऊपर बढ़ गई है। सब्जी के लिए आप जाओ, एक चीज 40 रुपए की थी वो 80 रुपए की है, जो 80 वाली थी वो 160 रुपए है। अब जो है सब्जियों की कीमतें इतनी बढ़ गई है, अगर हम लोग आलू, प्याज, टमाटर या तुरी, भिंडी की बात करें तो वो भी 100 रुपए से जो है हर चीज यहाँ पे ऊपर हो चुका है। कद्दू, तुरी, भिंडी समेत कोई मौसमी सब्जी सस्ते दामों दस्तयाब नहीं। तेल, घी और आटे के भी रोज नए भाव है। बढ़ती महंगाई से सारिफ और दुकानदार दोनों ही हैरान और परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन मोहबुल्ला के साथ सोहेल अहमद, आज न्यूज, कोयटा। मुल्क भर की तरह जिला मालाकंड में भी कमरतोड़ महंगाई ने अवाम का जीना हराम कर दिया है। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रफीउल्लाह से। जी रफी। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह बटखेला शहर, दरगैस, खाकोट, अलाडन, दाना और मुजाफात में महंगाई का तूफान बरपा है। अशियाई खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। आटा, घी, सब्जी हो या फ्रूट, सब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। लोग बड़े परेशान है क्योंकि हुकूमत ने महंगाई से आवाम का जीना दोबर कर दिया है। तरक्याती काम नहीं है, महंगाई हद तक चली गई है। कितनी बड़ी महंगाई है इस पाकिस्तान में, और इस हुकूमत से ये निजाम चलने वाला नहीं है। हम क्या करें, कहाँ जाए, किसको आवाज दे? कौम महंगाई के दलदल में फंसे हुए हैं। महंगाई की वजह से आवाम की क़ुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। गरीब तबका महंगाई की चक्की में फंस चुका है। महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हुकूमत से शहरियों ने रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया। रफीउल्लाह, आज न्यूज, बटखेला, मलाकंड। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी कॉलेजेस की निजकारी के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज। कहते हैं कि हुकूमत तलबा को मुफ्त तालीम से महरूम कर रही है, जो किसी सूरत कबूल नहीं। पेशावर से कामरान अली की रिपोर्ट देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कॉलेजेस की मुबैना निजकारी के खिलाफ असातिज़ा सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि कॉमर्स और जनरल कॉलेजेस की निजकारी की जा रही है, जो किसी सूरत मंजूर नहीं। असातिज़ा का कहना था कि बीओजी के जरिए सूबे के तमाम कॉलेजेस को खुद मुख्तार बनाया जा रहा है, जिससे तलबा मुफ्त तालीम से महरूम हो जाएंगे। हमारा जो बड़ा मुतालबा यही है कि जो बीओजी गवर्नमेंट का प्लान है और प्राइवेटाइजेशन, इसको फिलफोर वापस लिया जाए। आप देखें कि बीओजी की सूरत में ब्यूरोक्रेसी हम पे मसलत की जा रही है। हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉलेज जो है वो प्राइवेटाइज ना हो, क्योंकि अगर इस तरह से एक कॉलेज प्राइवेटाइज हो गया तो बाकी सारे कॉलेजेस भी फिर प्राइवेटाइज हो जाएंगे। हाँ, अगर कॉलेजेस प्राइवेटाइज हो गए तो इससे ये हो जाएगा कि बच्चों की फीसें बढ़ जाएगी। जब टीचर, प्रोफेसर रूट पर होगा तो हुकूमत को इधर आना चाहिए कि आपका मसला क्या है। आज गरीब बच्चे पर बोझ डाला जा रहा है। गरीब बच्चे से जो है फीस के आड़ में कॉलेज की निजकारी की जा रही है। असातिज़ा ने इंदिया दिया कि हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो वो कलम छोड़ हड़ताल शुरू करेंगे। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ कामरान अली, आज न्यूज, पेशावर। लाहौर गुजरपुरा ज्यादती केस में नया मोड़। फैक्ट्री मालिक नदीम के मुताबिक लड़कियों को डांस पार्टी के लिए बुलाया गया, सुबह 7 बजे वापस छोड़ा तो रकम पर झगड़ा हुआ, जिस पर रेप का इल्जाम लगा दिया गया। गुजरपुरा में गुज़िश्ता रोज 2 लड़कियों से मुबैना ज्यादती का वाकया। तफ्तीश में वाकये ने रुख ही बदल लिया। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत फैक्ट्री मालिक नदीम ने बयान में कहा कि रिश्तेदार इरफान के बेटे की पैदाइश पर पार्टी का मंसूबा बनाया। दोनों लड़कियों को शादरा से डांस के लिए 15,000 रुपए में बुक किया। इरफान के 5 दोस्त भी पार्टी में शरीक हुए। मुकर्ररा वक्त से ताखीर हो गई और रकम के मामले पर झगड़ा हो गया। पुलिस ने भी गुज़िश्ता रोज इब्तदाई तफ्तीश में बाहमी रजामंदी का मामला बताया था। जबरदस्ती इधर ले आए, हमें नशावर चीज पिलाई और उसके बाद गालिबन जना का वकूआ किया। दूसरी पार्टी का जो वर्जन है उनका कहना है कि ऐसा नहीं हुआ, हमारी कंसेंसुअल रजामंदाना जो है ना अरेंजमेंट थी। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खवातीन का मेडिकल करवा लिया गया है। मुलजिम नदीम, इरफान और इरफान वल्द परवेज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद मुलजिमान के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर।
बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। कनकोट में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में सहूलियात का फुकदान है। स्कूल की तामीर के लिए 82 लाख रुपए ठेकेदार हड़प करके रफ्फू चक्कर हो गया। ना बिजली, ना पानी और ना ही फर्नीचर है। बच्चे शदीद गर्मी में निढाल होने लगे हैं। मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से। जी हुजूर बख्श मंगी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चलूं कि सिंध के अंदर स्कूलों की हालत जार देखने को मिलती है। इसी तरह कंदकोट में भी यही सूरत हाल है। जिस तरह से 2 साल मुसलसल कोरोना के बायस स्कूल्स बंद थे, बच्चों की तालीम बंद थी, तो अब जाकर स्कूल्स खुले हैं। तो यहाँ पर जब बच्चों की हालत देखने हम आए तो यहाँ पर स्कूलों में किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं, ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई जो है कि पंखा है, ना किसी किस्म की कोई सहूलियात फराम की जा रही है। शदीद गर्मी में बच्चे पसीने से निढाल नजर आते हैं। अगर गंदगी की बात करें तो गंदगी के भी ढेर नजर आते हैं। यहाँ पर झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट के गवर्नमेंट प्राइमरी मस्जिद स्कूल दोस्त अली सोरानी, जो कि गोली मार्ग में स्कूल है, और यहाँ पर झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। और कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ठेकेदारों को ये जो पैकेजेस मिले थे और इसकी कोरोना की मद में पैसे हड़प किए गए हैं, करोड़ों रुपए पैसे हड़प किए जा रहे हैं, मगर किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं हो सकी है और ना ही एस्टीमेट के मुताबिक जो है कि स्कूलों का काम हो सका है। मैं आपको बताऊं कि इस स्कूल में 7 कमरे जो क्लासेस थे वो देने थे, जो ना हो सके, और 5 क्लासेस बनाकर ठेकेदार गायब हो गया। और उसके साथ साथ 4 बाथरूम बनाने थे, जो कि एक भी बाथरूम नहीं, और बाउंड्री वाल बनाना था। ये जो खड्डा आप देख रहे हैं, तो इसमें जो है कि मिट्टी के साथ यहाँ पर बाउंड्री वाल बनाना था, टफ टाइल्स का काम था, मगर वो भी नजर नहीं आ रहा। और वो 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी काम नहीं हुआ। ये स्कूल की सूरत हाल का जायजा लेंगे हम और यहाँ दिखाएंगे कि बच्चों को कितनी मुश्किलात हैं, उस्तादों को कितनी मुश्किलात हो रही है, पसीने से निढाल हो रहे हैं। और यहाँ पर सफाई की सूरत हाल देखें, यहाँ पर कचरा गंदगी है, सफाई के लिए कोई अमला मौजूद नहीं कि यहाँ पर कोई साफ सुथरा माहौल पैदा कर सके। इसी तरह ये उस्तादों का हाल देखें तो ये पसीने से निढाल हैं और फिर भी बच्चों को तालीम दे रहे हैं और अपना फर्ज निभा रहे हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई सहूलियात नहीं। ये क्लास है, यहाँ पर पंखे तो लगे हुए हैं मगर बिजली का कोई नाम और निशान नहीं। खिड़कियां तो हैं मगर ईंटें लगी हुई हैं खिड़कियों में, कहीं वो गिर न जाए। इसी तरह ये जुगाड़ू सिस्टम चल रहा है। मासूम बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर पसीने से निढाल हैं और ना ही इन्हें कोई सहूलियात फराम की जा रही है। इस हवाले से उस्ताद हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे। सर बताइएगा कि कितना अरसा हुआ है यहाँ काम मुकम्मल नहीं हो रहा और कितनी कितनी जो सहूलियातें आपको फराम नहीं की जा रही? सर तकरीबन 5 से 4 साल हो गए। ये ठेकेदार पता नहीं कहाँ है, न बिजली का काम है, न कोई स्कूल का काम हो रहा है, न सफाई है, कुछ भी नहीं। हम तो ऑफिसरों को कह कर थक गए हैं। अब आप खुद देख रहे हैं कितनी गर्मी है, उसके बावजूद भी हम यहाँ बैठकर तालीम दे रहे हैं। कितनी इनरोलमेंट है, कितने बच्चे हैं यहाँ? 350 पौने 400 बच्चे हैं। 350 और पौने 400। उस्ताद ने जिस तरह से बात की, ये मासूम बच्चे जो है कि ये सहूलियात नहीं, और ये खिड़कियां देखें, खिड़कियों की ये सूरत हाल है, ये कंडीशन है। यहाँ पर ये बच्चे जो है कि स्कूल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं, ना बिजली ना पानी। क्या कहना चाहेंगे आप बिलावल भुट्टो से और सीएम से? पानी है, बिजली है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बच्ची कह रही है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई सहूलियात नहीं। और दूसरे क्लास में हम चलेंगे तो यहाँ पर भी एक तो उस्ताद नजर नहीं आ रहा और ना ही यहाँ पर बच्चे जो है कि कोई डिसिप्लिन नजर आ रही है। ये क्लास तो है मगर कौन से क्लास है आप? 4। क्या कहेंगे, यहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी सहूलियात नहीं? पर ना पानी है, ना बिजली है, ना सहूलत है, और हम गर्मी में बैठे हैं। सर बताएं कि कितना अरसा हुआ है इस काम को ये मुकम्मल नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्शन वाला? इसको 3-4 साल हो गए। ये सर 6 महीने का इसका टारगेट था। कितने क्लासरूम बनाने थे और क्या क्या एस्टीमेट के मुताबिक काम करना था? 7 थे क्लासरूम, उनमें से 5 बने। तामीराती काम वो मुकम्मल नहीं हो सका है। और इसी तरह ये जो क्लासरूम्स के जो मद में जो बिल थे वो तो हड़प कर दिए गए। मंजूर नजर ठेकेदार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस स्कूल को सहूलियात फराम की जाए ताकि 300 से ज्यादा जो बच्चे हैं उनको सहूलियात फराम हो सके और इल्म की रोशनी से रोशनास हो सके। जी पेशावर के इलाका बद्दू समरबाग में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। जगह जगह गंदगी के ढेर के बायस वबाई अमराज फैलने का खदशा है। काशान आवान की रिपोर्ट देखते हैं। पेशावर का इलाका बुद्दू समरबाग, जहां बिजली है, न सुई गैस और ना ही पीने का साफ पानी।
खस्ता हाल सड़क और सीवरेज का निजाम भी अबतर है। सफाई का कोई निजाम नहीं है, यहाँ पानी भी खड़ा रहता है, जब बारिश होता है तो लोगों को बहुत मुश्किलात होता है, इससे बहुत बीमारियां फैलते हैं, न सेहत के लिहाज से कोई डिस्पेंसरी है, न इलाज मुआवजे का कोई तरीकाकार है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां सर उठाने लगी। बुद्धू समरबाग के अवाम कहते हैं कि जिनको वोट दिया उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। गैस की शॉर्टेज की वजह से गैस ना होते हुए भी ना होने के बराबर है, क्योंकि हमने काफी दफा हुकूमत से इल्तिजा की है, इनके नुमाइंदों से बोला है, लेकिन वो इस बारे में कोई एहतजाज कोई वो नोटिस नहीं ले रहे। 24 घंटों में 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे नहीं होते, तो इधर पानी का भी मसला होता है, पानी नहीं होते घर में, और बहुत मुश्किल से हम इधर जिंदगी गुजारते हैं। इधर कोई नहीं MPA नहीं कोई MNA कोई तवज्जो नहीं देते है। इस दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम ये इलाका और इसके बासी दोनों ही बेहतरीन कारकर्दगी का राग अलापने वालों को आईना दिखाने के लिए काफी हैं। कैमरामैन आदिलजादा के साथ काशान अवान, आज न्यूज पेशावर। दुनियापुर का रुख करेंगे। दुनियापुर में पीने के पानी की शदीद किल्लत है, लोग पानी के हुसूल के लिए दर बदर फिर रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे चौधरी जाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, दुनियापुर शहर और गिरदोनवा के इलाकों में आज भी पीने के पानी की शदीद किल्लत है। हम इस वक्त दुनियापुर शहर से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर चेक नंबर 343 WB के करीब मौजूद है, जहां पर दूर दराज के इलाकों से लोग पीने का पानी भरने के लिए नहर पर आए हैं। हाँ भाई, पानी साफ नहीं मिलता, हर वेले आवे पानी देते आप चेक भी सारे कर सकते थे, आके टूटियां लगियां पे लाइन लगे पे कोई पानी नहीं, बेला से बार बार के अटके रहते, नहर तो बाहर कई दू बार कौड़े छड़ पी के से बड़े तंग है। 2 घंटे पहले सानू काम तो छुट्टी करनी पैंदी है, ऐसे में उत्थे साडी दिहाड़ी नहीं बनती, दिहाड़ी फिर वो 400-500 रुपया मिलती है सानू, बड़े अजी तंग है। 6 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ लोग नहर में नहा रहे हैं, खवातीन कपड़े धो रही हैं, जानवर जो है पानी पी रहे हैं, वही जो है पानी पीने के लिए पानी यहाँ से पीने के लिए भर भर कर जा रहे हैं। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा किया है, खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए, हमें पीने का साफ पानी जो है फराहम किया जाए। जी जोकर बनकर वालिदा की किफालत करने वाली साइमा को सरकारी नौकरी मिल गई। साइमा का कहना है कि वालिद के इंतकाल और भाइयों की अचानक मौत ने जोकर बना दिया था। लाहौर से अतीक मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। तंग दस्ती के बायस डॉक्टर बनने की ख्वाहिश को दबाकर साइमा कई माह जोकर बनकर सड़कों पर बच्चों को बहलाने का सामान बेचती रही। घर का खर्च और वालदा की अदवायात के हसूल की तगोदों में लोगों का गैर मुनासिब रवैया साइमा का दिल दुखा देता। अब सिविल डिफेंस में नौकरी मिल जाने पर साइमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। जो चाहती थी ना कि मैं इज्जत से कमाऊं, ना कि लोगों के डोनेशन पे रहूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी अम्मी की दुआओं से और उनकी एक सब्र की वजह से अल्लाह ने ये इनाम बख्शा। साइमा कहती हैं, वालिद के इंतकाल और भाइयों की अचानक मौत से घरेलू हालात खराब हो गए थे। मेरे जोकर बनने पर वालिदा भी नाखुश थी। मैंने घर में झूठ बोला कि मेरी जॉब लग गई है। वालिदा से मैंने ये कहा। जॉब के चक्कर में मैंने इवनिंग में एज ए जोकर खुद को प्रमोट करना शुरू कर दिया। मैंने ये लालच करना शुरू कर दी कि अम्मी की मेडिसिन भी आ सकती है इज्जत में, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है और ईगो वो हर्ट किए बगैर मेहनत से कमा सकती हूँ, तो मैं क्यों ना ये काम करती रहूँ। साइमा ने बताया कि जोकर का रूप धार कर सड़कों पर खिलौने बेचना उसकी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के 7 बजे वेलकम बैक। हर बजट में मजदूरों के लिए उजरत का ऐलान, लेकिन अमल न होने के बराबर है। मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा आगाही सेमिनार का अहवाल सुना रहे हैं बन्नू से मोहम्मद नोमान। मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मरकजी कोऑर्डिनेटर शौकत अली अंजम का कहना था कि मजदूरों के लिए बेहतरीन कवानीन मौजूद हैं, मगर इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। तमाम स्टेक होल्डर और तमाम तंजीमें मुतालिका महकमों के साथ मिलकर
जनूबी अजला और बनू में लेबर कवानीन पर अमल दरामद के लिए मुश्तरका मुहिम चलाएंगे और जहाँ जहाँ लेबर कवानीन की पामाली हो रही है या कम अज कम तनख्वाह पे अमल दरामद नहीं हो रहा या मजदूरों की UBI या सोशल सिक्योरिटी में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, वहाँ उनके खिलाफ मुश्तरका आवाज उठाएंगे। मजदूर तबके का कहना है कि हुकूमत हर बजट में मजदूरों के लिए उजरत में इजाफे का ऐलान करती है, लेकिन कारखानों और दीगर शोबों पर अमल दरामद यकीनी नहीं बना पाती। हर साल में हुकूमत ऐलान करता है कि इतना मिलेगा मजदूर को, 21,000 मिलेगा, 22,000 मिलेगा, लेकिन बस ऐलान करता है और बस ऐलान ज़ेर ज़बान होता है। गवर्नमेंट तो हर किस्म की बिल पास कर लेते हैं, लेकिन इस पे कोई अमल दरामद नहीं होता। गवर्नमेंट ने जो बिल पास कर लिए है मजदूरों के लिए 21,000 रुपये मंथली, इस पर अमल दरामद किया जाए, क्योंकि इस वक्त महंगाई का दौर है और मजदूरी की 15,000 रुपये पर कुछ गुजारा नहीं होता। DWF के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा सेमिनार में शामिल तमाम स्टेक होल्डर्स ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम उठाए। कैमरामैन नसरुल्लाह के साथ मोहम्मद नोमान, आज न्यूज़, बन्नू। जहलुम का रुख करेंगे। जहलुम में वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम 3 सालों में 70,57,000 से ज़ायद पौधे लगाए गए। तफसीलात क्या है बताएंगे शहबाज भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मुल्क को माहौलियाती आलूदगी से पाक सरसब्ज़ो शादाब बनाने का मिशन। झेलम में महकमा जंगलात के ज़ेर तमाम 3 सालों में प्लांट फॉर पाकिस्तान, प्लांट फॉर पंजाब, हर बशर 2 शजर और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत 70,57,981 पौधे लगाए गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक झेलम फॉरेस्ट डिवीजन ने गुज़श्ता 3 सालों में 70,57,981 पौधे लगाए, जिसमें तलबा तालिबात, सियासी समाजी शख्सियात, इंतजामिया और इसके अलावा कारोबारी शख्सियात ने इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जबकि इसी मुहिम के तहत 2 मियावाकी जंगल भी लगाए गए। दरख्त जमीन का जेवर हैं जो आनियों को रोकते और बारिश का सबब बनते हैं। अपने नाम का सिर्फ एक पौधा लगाएं, मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाएं। मोहम्मद शहबाज भट्ट, आज न्यूज़, झेलम। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज न्यूज़। वेलकम बैक। जंग में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ने लगी है। शहरी अस्पताल में सहूलियात के फुकदान की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। मजीद देखते हैं वहीद मलिक की रिपोर्ट में। जानिब से SOPs पर अमल दरामद न किए जाने पर कोरोना की चौथी लहर से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा होने लगा। जिला भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 355 हो चुकी, जबकि अब तक 24 अफराद कोरोना की नजर हो चुके। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 50 से ज्यादा अफराद जेर इलाज हैं, जिनमें 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। दूसरी जानिब अस्पताल में दाखिल मरीजों के लवाहिकीन सहूलियात के फुकदान की शिकायत करते नजर आते हैं। 3 दिन हो गए, हमने इनसे बात की है कि आपके पास कोई वेंटिलेटर है, कि ये कहते हैं कि हमारे पास एक वेंटिलेटर भी नहीं है। इन्होंने शिफ्ट कहते हैं कि हमने शिफ्ट करना फैसलाबाद शिफ्ट कर दिया है। अब हमने सारा कुछ, अब इनके पास गाड़ी भी नहीं है। ये कहते हैं हमारे पास अब गाड़ी नहीं है, गाड़ी कभी खराब हो गई है, कभी हमारे पास है नहीं। इस बारे में MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अल्ताफ हुसैन बुहाना का कहना है कि अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है और तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इस वक्त हमारे पास हॉस्पिटल में जो कोविड सस्पेक्ट हैं वो 44 हैं एडमिट इस वक्त, जिनमें से 16 आइसोलेशन में हैं और बाकी जो हैं वो हमारे इमरजेंसी में हैं और उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। ऑक्सीजन का हमने बेहतरीन इंतजाम किया हुआ है। 200 सिलेंडर्स एट ए टाइम हमारे पास बैकअप में पड़े होते हैं। हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से अस्पताल में कोरोना से मुतासर अफराद के लिए मुकम्मल सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों को SOPs पर अमल करने की दरख्वास्त की गई है। वही खबर दें कि रायगढ़ में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाले फ्लाई ओवर के समरात आवाम तक नहीं पहुंच सके हैं। ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल और फुटपाथ पर ठेले और पथारे कायम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे आज उसके नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शहर के मसरूफ तरीन और अहम तरीन जो चौक है भट्टी चौक, वहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे ट्रैफिक का बेहंगम रश आपको मेरे अक्ल में नजर आ रहा है। ये चौक जो है ये करोड़ों रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर चौक की तमीर की गई थी, लेकिन उसके समरात आवाम तक नहीं पहुँच पा रहे। ट्रैफिक का निज़ाम उसी तरह बेहंगम जो है रश की वजह से मुअत्तल रहता है। हम की सहूलत के लिए पैदल चलने के लिए जो फुटपाथ बनाए गए थे वहाँ पे ठेले और पथारे कायम कर दिए गए हैं। मीडिया की 12 मरतबा निशानदेही के बाद
बावजूद रेवन फ्लाईओवर चौक में ट्रैफिक का बहंगम रश उसी तरह मौजूद रहता है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे अरसा दराज से गायब है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देने की बजाय किसी और जगह पे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं कि कई अरसे से यहाँ पे जो फुटपाथ बनाए गए हैं वहाँ पे अभी तक जो है वो उन रास्तों को साफ नहीं करवाया गया। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब रेवन में ट्रैफिक के निज़ाम की बहाली के लिए खुसूसी अहकाम जारी करें। जी, खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज़।